محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے سرزمین پر مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کیا، تبلیغ اسلام کرتے رہے، بیواؤں کو زندگی مل گئی، جب بیوہ کو زندگی ملی احمد مختار کی عمر بڑھتی رہی، میرے سرکار بڑھتے رہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نبی کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے، مسلمانوں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب اب تم نبوت کا اعلان کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرزمین پر احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے، احمد مختار تو بہت پہلے نبی ہو چکے تھے، جب آدم کا بھی وجود نہیں تھا، زمین نہیں تھا نہ زما تھا، نہ مکی تھا نہ مکہ تھا، نہ سجر تھا نہ حضر تھا، دنیا کی کوئی شے نہیں تھی، صرف خدا تھا اور محمد الرسول اللہ تھے، تب نبی میرے نبی تھے۔ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب سنو اب تم نبوت کا اعلان کرو۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم کن کے درمیان میں نبوت کا اعلان کروں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کن کے سامنے کروں؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اپنے اہل خاندان کے درمیان اعلان کرو۔ تو احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو دعوت دیا، اس میں عتبہ بھی ہے، اس میں شیبہ بھی ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے، اس میں ابو لہب بھی ہے۔ میرے سرکار نے جب دعوت دی تو مکہ کے بڑے بڑے چودھری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو فاران کے چوٹی کے طرف بڑھو، میں تم کو کچھ دعوت دینے والا ہوں، کچھ پیغام سنانے والا ہوں۔ احمد مختار نے جب آواز دیا تو فاران کے چوٹی کے طرف یہ لوگ بڑھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی کو لے کر جب فاران کے چوٹی پر چڑھے اور چوٹی پر چڑھنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے اہل خاندان یہ تو بتا دو اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے طرف ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تم پر ظلم و تشدد کی پہاڑ توڑے گی، تو کیا تم ماننے کے لیے تیار ہوگے؟ تو اس مجمع میں سب سے پہلے ابو جہل نے کہا تھا ہاں ہاں ماننے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ میں نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے سنا نہیں ہے۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مان رہے ہو؟ تو کہا ہاں مان رہا ہوں۔ اتنے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل سن، اے ابو لہب سن، اے عتبہ سن، اے صحبہ سن لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرا نام محمد رسول اللہ ہے، سنو مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا مسلمانوں کہ ابو جہل نے کہا یہی کہنے کے لیے مجھ کو بلایا تھا، اتنا کہنا تھا کہ میں نہیں مانتا، عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا، یہاں تک کہ مسلمانوں کچھ لوگ انکار کر کے جب بھاگنے لگے تو رب کعبہ کے پیارے حبیب فاران کے چوٹی پر احمد مختار رونے لگے تو مسلمانوں فاران کا چوٹی بھی کانپنے لگا۔ رب کعبہ سے عرض کرتے پاک پروردگار عالم تیرے ہی حکم سے ان لوگوں کو بلایا ہے مگر یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا رب کے بارگاہ میں عرض کیا تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سنو تو مجھے خدا کہہ دے میں تجھے رسول کہہ دوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہہ دوں، کوئی مانے نہ مانے تو مجھے مان میں تجھے مانوں۔ اتنا کہا تھا مسلمانوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے مانا تھا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی سے اتر کر میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ حدود حرم کے طرف بڑھنے لگے، میرے نبی کی عمر 40 سالہ کی ہے، نبی کی عمر بڑھتی رہی، یہاں تک کہ سارے کفار مکہ ایک جگہ میدان میں جمع ہوئے، اس میدان کا دار الندوہ نام رکھا اور اس دار الندوہ میں بیٹھ کر ان ظالموں نے ایک مشورہ کیا، اس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، تمام لوگ وہاں جمع ہیں۔ اور جمع ہونے کے بعد مسلمانوں بڑے بڑے چودھری جمع ہیں، میری ماں بہنوں میرے بھائیوں سنو، اب یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہیں، بہت ٹھاٹھے مارتا مجمع ہے، کوئی کہتا ہے محمد کو جلا وطن کر دو، کوئی کہتا ہے محمد کو دیس بدر کر دو، کوئی کہتا ہے پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دو،
दो, कोई कहता है जंगलों बियाबान में छोड़ दो, कोई कहता है सुनसान चटेल मैदान में छोड़ दो। इतना कहना था मुसलमानों कि उसी से कहने वाले ने कहा था कि मोहम्मद को पहाड़ के दरमियान छोड़ोगे तो मुसलो पहाड़ का पत्ता पत्ता, पहाड़ का जर्रा जर्रा, पत्थर का कतरा कतरा नबी की तबलीग करेगा। सुनो सुनो, अगर दरख्तों के दरमियान छोड़ोगे तो दरख्त के पत्ते पत्ते नबी की तबलीग करेंगे, अंधेरों में छोड़ोगे तो अंधेरा तबलीग करेगा, उजाले में छोड़ोगे तो उजाला तबलीग करेगा। इतना कहना था मुसलमानों कि कुफ्फारे मक्का ने देखा, अबू जहल ने देखा, मुसलमानों की एक आदमी आ रहा है जिसका लिबास बड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, लंबा सा जुम्बा है, हाथ में तस्बीह है और चेहरे पर या सर पे अमामा है, चला आ रहा है। जब वो आ रहा है मुसलमानों, आने के बाद मुसलमानों जब मक्का शरीफ और उस दारुन नदवा के करीब पहुंचा तो उसके हाथ में छड़ी थी, वो टेक लगाकर दाढ़ी का खड़ा हो गया, सारों लोगों की बातें सुन रहा था और सुनने के बाद कहा, ए अबू जहल तेरा राय फेल है, उतबा तेरी राय फेल है, शैबा तेरी राय फेल है। यहाँ तक कि एक के बाद दीगरे को गिनाते चला गया और कहा सबकी राय फेल है, मैं जो कहूँ वही करो। तो कहा क्या किया जाए? कहा सुनो, जो मैं कहूँ ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कहा फिर क्या किया जाए? कहा मोहम्मद का खात्मा कर दो माज़अल्लाह, मोहम्मद को कत्ल कर दो माज़अल्लाह। जब मोहम्मद को कत्ल करोगे तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सुनो सुनो, ना दीन रहेगा ना मोहम्मद रहेंगे, ना दीन रहेगा मगर फामोश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब ये हुआ मुसलमानों, मक्का के सरजमीन पर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होते भैया क्या बंद हो जाता। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम दायमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से कि मोमिन की है ईमान मोहम्मद के नाम पर, मोमिन की है ईमान मोहम्मद के नाम पर, हो जाऊं मैं कुर्बान मोहम्मद के नाम पर, हो जाऊं मैं कुर्बान मोहम्मद के नाम पर। अब जंगे तो बोक में कहा हजरत बिलाल ने, हाँ जंगे तो बुक में कहा हजरत बिलाल ने, देता रहूं अज़ान मोहम्मद के नाम पर, देता रहूं अज़ान मोहम्मद के नाम पर। अब लगता नहीं है घुन कभी ऐसे अनाज में, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। अब जलते हुए करा हमें तुम डालो दुश्मनों, छोड़ेंगे ना ईमान मोहम्मद के नाम पर। वो मेरे आका अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कत्ल की बलान होती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल की हो गई। मक्का शरीफ की सरजमीन पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 53 साल की हो जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का प्लान बनता है। मेरे रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो आज की रात सोने की रात नहीं है, आज के रात मेरे नबी हिजरत करके मदीना चले जाएं। अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में मुसलमानों मेरे सरकार अपने फूफी के घर से हिजरत करके मुसलमानों और मदीना शरीफ के तरफ चले। जब मदीना शरीफ का खत्म कर दिया जाए, अभी हजरत को भी बोलना है ना, बस थोड़ी देर तक मैं बोल रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हिजरत करके जब मक्का शरीफ से हिजरत मेरे सरकार ने 53 साल की उम्र में किया, करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से होते हुए जब मेरे अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को लेकर और जब मक्का शरीफ से निकलकर और मदीना शरीफ के तरफ बढ़े, बढ़ने के बाद मुसलमानों मदीने के मुसलमानों ने नबी के आमद पर मुहाजिरों
अंसार ने आंखें बिछा दिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए तो हर सहाबी, हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि मेरे नबी की सवारी मेरे मकान पर रुक रहे और मेरे नबी मेरे घर आराम करें। यहाँ तक कि मुसलमानों, मेरे आका ने जब देखा कि मदीना शरीफ के मुसलमानों का ठाठे मारता मजमा मेरी मोहब्बत में बेकरार हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर फैसला किया कि ऐ लोगों सुनो, मेरी ऊँटनी जिसके दरवाजे पर रुकेगी उसी के घर हम ठहर जाएंगे। ऊँटनी को जब मेरे नबी ने फैसला दिया है तो वो ऊँटनी मुसलमानों, मुहाजिरीनों, अंसार, गुरबा, मसाकिन के तरफ नहीं, हजरत अय्यूब अंसारी के मकान पर जाकर ठहरी। जब हजरत अय्यूब अंसारी के मकान पर जाकर ठहरी, बैठ जाती है उनके आंगन में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहर जाते हैं। उस वक्त हदीस मुस्तफ़ा में लिखा है मुसलमानों कि हजरत अय्यूब अंसारी का मकान 2 महले का था। खजूर के ठाल और उसके छाल के जो है आपके छत पड़े हुए थे। यहाँ तक कि हजरत अय्यूब अंसारी मुसलमानों ऊपर के छत पे रहते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे का घर खाली किया था। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे के तह में रह रहे थे तो ए मुसलमानों, हजरत अय्यूब अंसारी को गवारा ये नहीं था कि आका नीचे रहे, गुलाम ऊपर रहे। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे गैरत को ये गवारा नहीं है कि मैं ऊपर रहूं गुलाम होकर, आप नीचे रहें। या रसूल अल्लाह, नबी का एहतराम तो देखो मुसलमानों, मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कुरान रखा हुआ है, ऊपर छत पे चढ़ जाया जाता है, मगर रब्बे काबा फरमाता है ये तो दुरुस्त है, अगर मेरा महबूब किसी छत के नीचे है, अगर उम्मती ऊपर है तो नबी के शान में बेअदबी है। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन छत से नीचे आते हैं और उतरने के बाद का, या रसूल अल्लाह, ऊपर के हिस्से में आप तशरीफ रखें, नीचे के हिस्से में गुलाम तशरीफ रखेगा। इतना कहना था मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक मस्जिद कायम की। उस मस्जिद का नाम मस्जिद क़ुबा है। पहली मस्जिद तो मदीना मुनव्वरा में कायम हुई, मस्जिद का नाम क़ुबा है। मस्जिद क़ुबा को मेरी सरकार ने कायम फरमाया। जब मस्जिद क़ुबा कायम हुई, मुसलमानों का ठाठे मारता मजमा मस्जिद क़ुबा के तरफ बढ़ रहा है, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। ए मुसलमान सुन, उस जमाने के मुसलमानों का तौर तरीका ये था, जब हय्या अलस सलाह की अजान की सदा बुलंद होती थी तो मुसलमान मस्जिद के तरफ भागता था। आज जब हय्या अलस सलाह की आवाज बुलंद होती है तो हम जैसे मुसलमान खेतों खलिहान बाजार के तरफ भागते हैं। मगर सुनो मुसलमानों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अजान होती थी तो मेरे बदन कांपने लगते थे, लरजने लगता था। यहाँ तक कि मुसलमानों, जब लरजने लगता, मेरे चाहने वाले पूछते, ए अली, अजान होता है तो आप कांप क्यों रहे हैं? तो हजरत अली फरमाते थे, बहुत बड़े घर से बुलावा आ गया है, बहुत बड़े का बुलावा आ गया है और मैं आज उसके सामने हाजिर होने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा ना हो बड़े घर के बुलावे में मेरे शान के खिलाफ कोई सी बात हो जाए जिससे मैं दरगौर हो जाऊं। मगर मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने जाते, फजर की सुन्नत पढ़ के बैठते तो बहुत रोते थे। आपके चाहने वाले पूछते थे, अबू बकर सिद्दीक क्यों रो रहे हो? आप अर्ज करते, मेरे जिंदगी का ठिकाना नहीं है, हो सकता है मैंने सुन्नत पढ़ा है, फर्ज पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, कज़ा रह जाए। ए मुसलमानों, मुसलमान की जिंदगी ये हुआ करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद क़ुबा को कायम फरमाया, जब मस्जिद क़ुबा कायम हुई, मदीना शरीफ के मुसलमान ठाठे मारता मजमा मस्जिद क़ुबा में लोग दाखिल होते थे, नमाज पढ़ते थे। अबू जहल के पास ये खबर पहुंचा कि मोहम्मद अरबी जब यहाँ से निकल गए हैं, मक्का से निकलकर मदीना पहुंचे हैं, तो इस्लाम वहाँ बहुत तेजी से फैल रहा है, इस्लाम की प्रचार हो रहा है, लोग ईमान लाते हुए नजर आते हैं। मुहाजिरीनों अंसार ने नबी का कलमा पढ़ लिया है। इतना कहना था मुसलमानों कि अबू जहल ने एक काशिद था, उस काशिद को भेजता है जो बहुत बड़ा पहलवान था। उसने अपने काशिद को भेजा और कहा, मस्जिद क़ुबा में जाना, दोपहर का वक्त होगा, देखना मुसलमान जो है मोहम्मद की इज्जत और
और कद्र किस तरह करते हैं, उनसे प्यार में किस तरह मोहब्बत से पेश आते हैं। अबू जहल का कासिद मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनकर मस्जिद क़ुबा में पहुंचा है और पहुंचने के बाद एक कोने में खड़ा हो जाता है। अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मस्जिद क़ुबा में जब दाखिल होते हैं तो कभी दाएं सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं फारूक आजम हैं, कभी मौला अली आगे हैं, कभी उस्मान गनी आगे हैं, यहाँ तक कि आगे पीछे सहाबा दौड़ रहे हैं। इतना दौड़ना था कि वो क़ुबा का वो गुलाम पूछता है अबू जहल का, ये बताओ तुम नबी इनके आगे पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो कहा सुनो, मेरे नबी के तमाम दुश्मन हैं, मैं सोचता हूँ कि कोई जालिम अगर मेरे नबी पर तीर चलाना चाहे, ये तलवार का वार करना चाहे, तो मैं अपने नबी के जिस्म पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो तीर मुझे पहले लग जाए, वो तलवार मुझे लग जाए, मगर मेरे नबी पर न लगे। इतना कहना था मुसलमानों कि अबू जहल का काशिद खड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू खाने पर बैठते हैं वजू करने के लिए, तो हजरत फारूक आजम ने अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी पेश किया। जब पानी पेश करते हैं तो मेरे सरकार मुसलमानों बैठे हैं वजू खाने पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पानी नबी के हाथ पर डालते हैं तो फारूक आजम नबी के किए हुए वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि अपने सीनों पर मलते हैं। और दिगर सहाबा बढ़ बढ़ के अपने हाथों पर नबी के वजू किए हुए पानी को ले लेकर कोई जिस्म पर मल रहा है, कोई आंखों में लगा रहा है, कोई सीने पर रगड़ रहा है, कोई सर पे मल रहा है, यहाँ तक कि नबी के धोबन को वजू का जो धोमन था मुसलमानों, उस धोमन को सहाबा अपने जिस्म पर मल रहे हैं।